نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ شکر گزاری خداوند کی جو ہمارے درمیان موجود ہے، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آمین۔ اور کتنوں کو ایمان ہے کہ آج خداوند کی قدرت ہمارے درمیان کثرت سے ہے۔ آمین آمین۔ اور میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر راشد کا اور اپنی چھوٹی بہن بیٹی گلشن کا، جس نے یہ دعوت دی، اور آپ سب کے لیے بھی کہ ہم مل کر خداوند کی عبادت کریں۔ آئیں پاری صاحب کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ آئیے آج خداوند کے مقدس کلام میں سے افسیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں گے۔ اور آج میں جب آپ کے لیے دعا کر رہا تھا تو یہی بات خدا نے میرے دل پہ رکھی۔ تھوڑا سا نوالا ذرا گہرا ہے اور سخت ہے، لیکن اس کو کھائیے۔ اگر آپ ہیلدی ہونا چاہتے ہیں، مچور ہونا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں خداوند میں، تو اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ میں افسیوں کے خط کے پہلے باب کی 15ویں آیت سے پالوس کی ایک دعا پڑھ رہا ہوں۔ یاد رہے کہ بائبل مقدس میں پالوس کی 17 یعنی 17 پریئرز ہیں۔ کتنی ہیں؟ 17۔ اور ان 17 جب دعاؤں کو آپ خطوط پہ پڑھتے ہیں تو ایک دعا کرنے والے شخص کو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح دعا کرنی۔ پالوس کی دعاؤں کو پڑھیں گے تو ہماری دعائیں آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی لگیں گی۔ ایسے لگے گا جیسے کوئی بچہ دعا کر رہا ہے، لیکن پالوس کی دعا بہت گہری دعا ہے۔ ایک تو یہ دعا ایسی دعائیں ہیں کہ ان میں دنیاوی چیزیں نہ ہونے کے برابر مانگی گئی ہیں۔ کیا؟ کون سی چیزیں؟ کون سی چیزیں؟ دنیاوی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ زمینی چیزیں۔ ہم ہمیشہ خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ زمینی چیزیں۔ ہماری عبادتوں کا فوکس، ہماری عبادتوں کا سارا جو ہے پورا دار و مدار جو ہے وہ اسی بات پر ہوتا ہے کہ ہمیں کسی طرح زمینی چیزوں کو مل جائیں، اور جب وہ مل جاتی ہیں اور کبھی وہ نہیں ملتی ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن آئیے خدا کے بندے پالوس کی دعا دیکھیے کہ وہ کس طرح کلیسیا کے لیے دعا کر رہا ہے۔ پہلے باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت مکاشفے کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت
اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آنے والے جہاں میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا، اور یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی مموری جو ہر طرح سے سب کا ممور کرنے والا ہے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اعمال کی کتاب جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اعمال کی کتاب کے اندر بار بار دعا کا ذکر پایا جاتا ہے۔ دعا سے انہوں نے مکان ہلا دیا، دعا سے بڑے بڑے کام وہاں پر ہوئے، اور یہ کلیسیا کے لیے ایک بہت خوبصورت بات تھی کہ وہ دعا کرنے والے تھے۔ لیکن جب خدا کا بندہ پالوس افسس کی کلیسیا کو پہلی دعا لکھ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان میں خداوند یسوع پر ہے سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تو ان کے ایمان کی تعریف کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اس کے پالوس کی آپ تحریروں کو پڑھیں، غور کریں، کلیسیا لیڈرز بھی غور کریں۔ یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات نکالے گا جس کے لیے وہ خدا کا شکر کرے گا۔ یہاں تک میں اپنے چرچ میں ان دنوں میں بائبل سٹڈی کروا رہا ہوں ان 17 پریئرز پر، اور میری کوشش ہے کہ میں ریکارڈ کر کے اس کو جو ہے وہ کلیسیا کے لیے دوں تاکہ سب اس سے برکت حاصل کریں۔ لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے پالوس کی زندگی سے، ایک کوئی نہ کوئی گل شکر گزاری دی کڈ ہی لیندا ہے۔ کی کردا ہے؟ کی کردا ہے؟ جدوں دعا شروع کردا ہے تے کسے نہ کسے گل دی کی کردا ہے؟ کدے لئی؟ کلیسیا لئی۔ اس کا سٹائل ہے لکھنے کا، اس کی رائٹنگ اس طرح کی ہے کہ یہ ہمیشہ خداوند کا شکر کرتا ہے کلیسیا کے لیے۔ ایک جگہ میں رومیوں دے خط دعا پڑھا رہا سا، اوتھے کوئی اینو گل نہیں لبھی شکر گزاری تھی، پر انہیں پھر بھی شکر گزاری کاٹ لی۔ میں حیران، شکر گزاری پتہ کی کٹی؟ آندہ ہے میں اس گل لی شکر کرنا ہے تے تیاڈے تے خدا دا فضل ہو گئے۔ یعنی کلیسیا کوئی بھی خوبی نہیں، کوئی بھی گل نہیں، پھر بھی وہ شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ اور کس بات سے بھرا ہوا ہے؟ کہ خدا کا تم پر فضل ہوا ہے، تمہیں نجات مل گئی۔ تو وہ خدا کے فضل کے لیے کیا ہے؟ شکر گزار ہے۔ تو میں آج پہلی بات آپ کی روٹ تک لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہمیشہ خداوند کے گھرانوں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، خادموں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے لبریز ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ شکوے ہی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ شکوے ہی ہے۔ اس کلیسیا بھی انہوں نے کئی گلاں دا پتا سی، لیکن پھر بھی اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ شکر کر رہا ہے۔ یہ اس کا سٹائل ہے۔ اور خدا کے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ بات اچھے سے شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ایون مکاشفہ کی کتاب میں بھی جب لیٹر لکھے گئے تو پہلے کلیسیاؤں کی کیا کی گئی؟ میرے ساتھ رہیے، کیا کی گئی؟ تعریف۔ کیا کی گئی؟ ہم کیا کریں گے جب بھی بات کہاں سے شروع کریں گے؟ کسے دی گال شروع کر لو، کہنا چھڈ یار، وہ دا پتہ ہی جیڑی وہ دی کمی ہوئی وہ کڈ کے تے اگے مارنی۔ یہ کسی بھی کم روحانی ہونے کی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ جنہ بدا کٹ روحانی ہوئے گا
ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਕਮੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆन पवाड़ियां ओदा ध्यान मसले। लेकिन जितना खुदावंद में कोई गहरा होगा वो शुक्रगुजारी से, वो सताइश से, वो अच्छी बातों से भरा हुआ होगा। इसीलिए कई लोग चर्च के लिए जो हैं वो हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं, खादमों के लिए नेगेटिव बोलते रहते हैं। लेकिन अगर आप खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं, खुदावंद में गहरा होना चाहते हैं, हमेशा शुक्रगुजारी से भरे जाइए। वो दो बातों के लिए यहाँ शुक्रगुजारी करते हैं। पहले नंबर पर वो कहते हैं तुम्हारा ईमान। इस कलीसिया में क्या पाया जाता है? कम बोल रहे हैं आप कि क्या पाया जाता है? ईमान। अगर आप इंग्लिश की बाइबल्स का मुतालिया करें, मुख्तलिफ तराजम जैसे NIV बाइबल है और भी तराजम है, तो उनमें हमारी उर्दू बाइबल में सिर्फ ईमान लिखा हुआ है। लेकिन अगर इंग्लिश में या इसको यूनानी की जो है लैंग्वेज में देखेंगे तो यहाँ दो लफ्ज़ आपको मिलेंगे, एक मिलेगा ईमान और दूसरा मिलेगा मोहब्बत। तो रसूल यहाँ उनकी ईमान की भी तारीफ कर रहा है और उनकी क्या कर रहा है, उनकी जो आपस में मोहब्बत है, जो मसीह के साथ उनकी मोहब्बत है, वो उनके लिए भी शुक्रगुजारी से क्या किया हुआ है, भरा हुआ है। इसका मतलब है हर चर्च के अंदर कोई ना कोई खूबी क्या की जाती है, पाई जाती है। वो ईमान में बड़े हो सकते हैं, वो मोहब्बत में बड़े हो सकते हैं, लेकिन साथ खुदा का बंदा उनके लिए दुआ भी कर रहा है। और दुआ क्या कर रहा है? ये शुक्रगुजारी करके, और जब वो शुक्रगुजारी कर लेता है तो फिर उनके लिए एक दुआ करता है। और वो 17वीं आयत में हम पढ़ेंगे, लिखे है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। क्या करे तुम्हें? तो क्या इफसस की कलीसिया के पास हिकमत, मुकाशफा और दिल की आंखें इनकी रोशन नहीं थी? बोलिए जी। ईमान था, मोहब्बत थी, शुक्रगुजारी पौलुस करते हैं, और साथ उसने इफसस की कलीसिया को भांप लिया कि यहां पर हिकमत की भी कमी है, यहां पर मुकाशफे की भी कमी है। और साथ उनको कहा तुम्हारे दिल की आंखें क्या हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि इफसस की कलीसिया रूहुल कुद्स से भरी हुई नहीं थी, रूहुल कुद्स से भरी हुई थी। यहां रूह की ममूरी की बात नहीं हो रही, यहां बात यह हो रही है कि उनके दिल की आंखें क्या हो जाएं। इसका मतलब है कलीसिया में मोहब्बत भी थी, ईमान भी था, लेकिन आंखें अभी तक क्या नहीं थी? जोर से जरा बोलना, क्या नहीं थी? है शुक्र ये गल पौलुस ने कही सी। जे किते कह देंदा लोकल पादरी कि भाई जी तुहाडियां अखां की ने रोशन नहीं जियां बंद ने, उन्हें की कहना सी? उन्होंने भाई जी बंद होणगियां तुहाडियां, बंद होणगियां तुहाडियां, ते जे बंदा होया तो ना आना जा तेरी होणगियां बुढ़ी दियां, साडियां ते की नहीं खुलियां ने। लेकिन पौलुस चूंकि बहुत ज्यादा खुदा का हाई बंदा था, उसने जब ये लिखा खुदावंद इनके दिल की आंखें रोशन हो जाएं। इसका मतलब है कलीसिया जब ईमान में बढ़ रही होती है, प्रस्तुश में बढ़ रही होती है, खुदावंद में बढ़ रही होती है, लेकिन साथ साथ कई चीज़ों की उनकी ज़िंदगी में कमज़ोरियां होती हैं। और इस चर्च की कमज़ोरी ये थी, इनकी आंखें उस तरह रोशन नहीं थी। अब क्यों खुदावंद का बंदा उनकी आंखों को रोशन देखना चाहता है?
क्यों उनकी आंखें खुलनी चाहिए, क्यों उनकी आंखें रोशन होनी चाहिए, क्यों खुदावंद के बंदे को यह फिक्र है कि इनकी आंखें क्या हो जाएं, रोशन हो जाएं। तीन बड़ी बातें हैं जिन पर आज मैं कलाम सुनाना चाहता हूं, जो पौलुस ने इनकी आंखों के खुलने के लिए दुआ की है। और आज काश कलीसिया की इन तीन बातों के लिए आंखें खुल जाएं, कलीसिया यहां से यहां हो जाएगी। आमीन आमीन। क्यों आंखें खुल जाएं, क्यों उनकी आंखें रोशन हो जाएं, क्यों उनकी आंखें खुदावंद खोल दे, क्यों पौलुस की दुआ है कि उनकी आंखें रोशन हो जाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि कभी कभी बासियत लीडर भी इंसान की आंखें खुली नहीं होती, लेकिन पौलुस की कलीसिया के लिए दुआ है कि ऐ खुदा इनके दिल की आंखें क्या हो जाएं, क्या हो जाएं। अच्छा, मैं फिर कहूंगा, पौलुस ने बहुत कम दुनियावी बातों के लिए दुआ की है। भाई रहमत हुंदा उन्हें पहली दुआ करनी सी, खुदावंद एदी झोली दौलत नाल भर दे। केड़ी दुआ होनी सी? भैन भी खुश, पादरी भी खुश, सारे खुश। क्यों? साडा ध्यान जाजू के आउंदा किथे है? दुनियावी। लेकिन आज मैं दुनियावी चीजों की बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर आप कहूंगा, अगर ये रूहानी चीजों के बारे में आपकी आंखें खुल गई, आपकी आंखें रोशन हो गई, आपकी आंखों में ये चीजें ने पा लिया, ये रोशनी आप पे आ गई, तो मैं आपको वसूख से कहता हूं कि आपके लिए जिस्मानी चीजें भी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। हम गलत तरीके से बहुत दफा इन चीजों की तलाश करना चाहते हैं और हम इन्हें पाना चाहते हैं। क्या वो चीजें हैं जिनके लिए पौलुस ने कहा कि इनकी आंखें रोशन हो जाएं? लिखा है तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। तो पहली बात जिसके लिए पौलुस दुआ करता है कि आंखें रोशन हो जाएं, वो है कैसी उम्मीद। सब बोलिए कैसी, जारी बोलिए कौन सी? कैसी? जिस दौर से हम यहां गुजर रहे हैं, जो दौर हमारा चल रहा है, इसमें शैतान की हतल वसा कोशिश है कि आपकी उम्मीद छीन ली जाए। मैंने आज सुबह भी उम्मीद पर कलाम सुनाया, लेकिन वो कुछ और बातें थी। आज उससे थोड़ी सी फर्क बातें कि ये उम्मीद, लिखा है कि ये कैसी उम्मीद। उम्मीद नए अहदनामा में कोई 53 दफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आपके रोमियो के खत में ही कम से कम ये 13 दफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और ये बार बार, क्योंकि जब लोगों ने नजात नहीं पाई थी, कलीसिया अभी नजात से खाली थी, तो उनकी हालत क्या थी? इफ्सियों का खत उसका 2 बाब और उसकी अगर 12वीं आयत पढ़े तो क्या खुदावंद का कलाम कहता है, जब वो नजात उनके पास नहीं थी। लिखा है अगले जमाने में मसीह से जुदा, इस्राएल की सल्तनत से खारिज, वादों के ओहदों से नावाकिफ, आगे और क्या थे? ना उम्मीद, और दुनिया में खुदा से क्या थे? जुदा। तो जुदा जो शख्स खुदा से है, उसकी बड़ी निशानी जो उसकी जिंदगी में होती है, वो क्या होता है? वो ना उम्मीद। पौलुस ये दुआ कलीसिया के लिए कर रहा है कि वो एक बड़ी उम्मीद से क्या किया हो? भरा हुआ हो। किससे भरा हुआ हो?
میں آج صبح پاسٹر سالم کے چرچ میں یہ بتا رہا تھا کہ امید جس کا تعلق یہاں پر ہے اس کا تعلق ہمارے حالات سے نہیں. یہ جڑی امید دی پالوس گل کرن دیا یہ دا تعلق کدے تے نہیں ہے؟ حالات سے نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حالات کے بل بوتے پر چلتے ہیں, ایماندار بھی چلتے ہیں. جتن حالات درست ہوئے تے ایماندار دی امید بولو تو صحیح کی ہوئے گی؟ اوے ادن پنگڑے پہن کے ادن خوشیاں آن گیا. جدن کتے حالات تھوڑے جے ٹویسٹ ہوئے, تھوڑے جے جڑے فیور چ نہ آئے, نالی بہن جی بھی بجھ گئی, منسٹری بھی بجھ گئی, بھائی ہوری بھی بجھے پے نہیں, کیونکہ کیا کچھ گئی ہیں. لیکن جو شخص روح القدس سے بھرا ہوا ہے اور خدا نے اس کے دل کی آنکھیں روشن کی ہیں, ان پر حالات کبھی کارگر ثابت نہیں ہوتے. وہ برے حالات میں بھی پر امید رہتا ہے. کیسے رہے گا؟ کس حالات میں؟ اور پالوس کی بڑی خواہش ہے کلیسیا اس امید سے کیا کی ہو؟ بھری ہو. ایسا پر امید شخص, ایسی طاقت سے بھرا ہوا شخص جس کے پاس یہ قوت ہے. پر یہ امید کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اگر آپ خدا کے کلام میں پہلا خط پڑھیں تو خداوند کا بندہ کیا کہتا ہے؟ پہلے باب میں 3 آیت پڑھیں تو خداوند کا کلام لکھا ہے, ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا, پہلے باب کی 3 آیت, باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا. ہیلیلویا. کیا کیا؟ وہ تالی بجاؤنی جو زور نہ بجاؤ. آپ ایمانداروں, آپ تھوڑا سا اپنا کیمرہ ادھر لے لیں. زندہ امید ہے. دجیاں کول امید ہووے تے پاویں نہ ہوئے, ایک ایماندار کے پاس, راست باز شخص کے پاس ایک زندہ امید ہوتی ہے. اور وہ برے حالات میں, مشکل حالات میں بھی وہ کیا رہتا ہے؟ پر امید رہتا ہے. میں آج صبح چرچ میں بتا رہا تھا کہ کسی شخص نے کہا کہ بھی تصویر کشی کرو, مصوروں کو کہا کہ تصویر کشی کرو کہ کوئی بندہ بڑا مطمئن ہے, بڑا پر امید ہے. تو ہر بندے نے تصویر بنائی, انہیں بھی ایک اور بندے نے بھی تصویر بنائی. اور اس نے کیا تصویر بنائی؟ اس نے ایک آبشار بہ رہی ہے, تھلے خوب شور ہلا گلا ہے. اج میں شور دنیا دے وچ افراتفری پئی ہے نا, بولو تو صحیح, پئی ہے کہ نہیں افراتفری؟ ہر بندہ نٹھا پجا پھردا ہے, پتہ نہیں کی ہون لگا ہے تے دنیا پریشان ہے. ادھروں میڈیا لگا ہے, وہ تمی خبر تانوں دے دیندا ہے, اینجو چلا جو, اینجو چلا جو, اینجو چلا جو. ہونا ایتھوں تک بارش پاؤن والے جڑے نے وہ راتوں رات ہی طوفان پا چھڑدے تے سویرے ویکھو تے سب کچھ خشک ہیں. لوگوں نے ایسا ڈرایا ہے کہ نہ کر کے, لیکن خدا کے لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور پر امید ہوتے ہیں. انہیں تصویر بنائی, تھلے ہلا گلا بڑا شور ہو رہا ہے تے اتے ایک کگوئی نے, افاقدہ نے آلنا بنایا ہے. سارا تھلے شور شور ہے, وہ چپ کر کے اپنے آلنے چ بیٹھی ہے. کسی نے پوچھا یہ آلنے دا کی مطلب ہے؟ انہیں آکھا اس آلنے دا مطلب ہے اے فاقتہ اس برے حالات چ بھی پر امید وقت ہے. کلیسیا میں ایماندار حالات کسی طرح کے بھی ہوں, اگر اس کے دل کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں, اس نے پر امید ہی رہنا ہے. حالات ڈینجرس ہوں, حالات برے ہوں, منڈا فیل ہوئے, کڑی پاس ہوئے, حالات ادھر ہون, لیکن بندہ جو ہے وہ پر امید ہے. کیوں پر امید ہے؟ کیونکہ اس کے دل کی آنکھیں روشن ہو گئی.
इसलिए पौलुस की एक बड़ी दुआ कलीसिया के लिए ये है, ऐ खुदा इसके दिल की आंखें क्या हो जाएं, क्या हो जाएं, क्या हो जाएं, रोशन हो जाएं, ताकि इनको पता लगे इन्हां दी उम्मीद केड़ी है, कैसी उम्मीद है इनके पास। आज किसी ईमानदार नूं पूछिए भी तेरे को उम्मीद की है, तो उन्हें वेखना है और आ नवें जेड़े खादम होण उठे ने इन्हां लई बड़ा मुश्किल जो वजह जेड़े 5-7 खादम वड्डियां को कारां वड्डियां ने, वो जदों उन्हां नूं कारां तो उतरदे वेंदे ने नाल ही इन्हां दी सारी रूहानियत की हो जांदी। ओ कही थले हाय एड्डी वड्डी ओहदे को की आ कार, ओहदे घर आवी आ, वो ਇਹਦਾ कोई फर्क नहीं पैंदा, कार छोटी होवे ना होवे कुछ ना होवे, ईमानदार रास्तबाज उम्मीद से क्या है पुर है। मैं आगे चल पाऊँ कर मैं बताऊंगा ईमानदार के पास है क्या। उन साडियां अखां ही नहीं खुलियां कि साडे को है की। जिन्ना को अज तुसी कारां कोठियां वेंदे हो, इन्हां वाल ना वेखो, अपने मुस्तकबल वेखो, ਤੁਹਾਡਾ मुस्तकबिल कितना रोशन है। इनका वक्त ही है, आपका फॉरएवर है। आमीन आमीन। कांटे ਤੁਹਾਡਾ की है हमेशा के लिए, ये फॉरएवर है। आप क्यों परेशान पर उम्मीद। आइए रोमियो के खत में एक आयत पढ़िए, 5वां बाप, 5वें बाप की दूसरी आयत से पढ़े तो लिखा है, जिसके वसीले से ईमान के स्वभाव से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई है जिस पर कायम हैं और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करते हैं। ईमानदार के पास कौन सी उम्मीद है, कौन सी? सब बोलिए ऊंची आवाज में, कौन सी? आम उम्मीद नहीं, जलाल से भरी हुई उम्मीद। ईमानदार के पास क्या है? और साथ लिखा है, हम अपनी उम्मीद पर क्या करें? अपना हाथ ऊपर करें। ईमानदार क्या करें? ईमानदार नूं ते इंज चलना चाहिए, ते इंज खुश रहना चाहिए, इंज उन्होंने शाद रहना चाहिए, उन्होंने तो इंज लगे जिवें सारे पाकिस्तान दा की पूरी दुनिया दा मालिक होए। आमीन। इस तरह की उम्मीद का क्या होना चाहिए। असी एवें निम्मू झाने, निम्मू झाने किवें कहंदे ने, जिन्हों माऊ मिठर कहंदे, इंज जिवें किते मां मरी हुंदी है। असी आन के इत्थे भी कहने आए, कल मैं गीत सुनन दिया सा, असी उत्थों मंगना है जिथों राजे भी। मैं कह लै दस, ये इंज मंगन दिया ही जिवें किते यतीम खाने च खलोता ही ते किते बुरा हाल ही। लेकिन ईमानदार रास्तबाज जो है वो पुर उम्मीद और जलाल की उम्मीद है। लिखा है हमें अपनी उम्मीद पर क्या है? फख्र है। क्या है? फख्र है। और जो लोग कहन त्याडे को की है, आया उन्होंने कहो अजे त्याडियां अखां बंद ने, ये पूछना ही जाके, ते पूछ जाके अमीर आदमी को साडे को है की। गया सी ना उत्ते गया ही ना, थले लाजर नूं इंज ही समझदा सी भी जिवें इहदे कोल कुछ भी नहीं। थले कदी गेट उहदा खुलदा होना, कदी मशरूबात पींदा होना। कलाम च लिखिया कपड़े भी रोज ही चेंज करता ही, बदलता ही, रोज किते वन सवन्ने किते कपड़े पाउंदा ही। लाजर का एक ही सूट बेचारे का, वह भी फटिया दे पुराना, बेचारे दे कोल कुछ भी नहीं। पर यह बंदे दा खुदा नाल तलक सी। जदों उत्ते गया ना, आंदे हैं लाजर अब्राहम दी गोद च, ते की उत्ते करे है? ये उत्ते की करे? ये ईमानदार की उम्मीद है। ये ईमानदार की क्या है?
जलाल की उम्मीद है, और लिखा है उस पर क्या करो, फख्र करो। और बाइबल मुकद्दस कहती है, जब हम पढ़ते हैं, लिखा है सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। करने असी उंज घट हाँ, मुसीबत होए तो असी उंज ही बेचारे एवें करें की होया, जो सारियां नूं पता लगदा है इनू की है। मेरा वड्डा भरा सी, तुसीं सारे जानते हो, भाई जोयल, तो वो पता है जिदन उहदी जेब च पैसे नहीं सी ना हुंदे तो उन्हें नवां सूट नहीं पाउणा। मैं क्या भी साडे को ते होण ते भावें ना होण, असीं ते पावांगे नवें हैं, किसी नूं पता ही नहीं लगना भी इन्हां दे कोल कुछ है। वो आंदा ही नहीं यार, जेब जो खाली है तो फिर की है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ, ईमानदार मुसीबतों पर भी फ़ख्र करें। अगर कोई मुसीबत में है, दुख में है, परेशानी में है, किसी मुश्किल में है, तो लिखा है मुसीबतों पर भी क्या करे। ये कौन करेगा जिदियां अखां दूजा की समझेगा उन्हों है ये की होया ही ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕ ਦੁਆ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ तो असी रहन देने, पर मैनू कोई जवाब ना मिलिया। फिर मैं अपने नौजवानों को कहा भी मैनू इंज लगता है भी असी पंजाब की सरजमीन ते कदम रखना है तो बारिश हो जानी। असी पहले जुमे रात जुमे नू जदों आए तो शाम शाम छम छम बारिश पई तो मौसम ठंडा हो गया। आमीन। असी पहलों ही परेशान तो यसू दे इंतज़ाम पहलों ही हुए। अपनी मुसीबतों पर भी क्या करें, फ़ख्र करें। और क्या करें मुसीबतों पर फ़ख्र, पढ़िए जल्दी से। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों पर भी फ़ख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र क्या होता है, और सब्र से और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं हासिल होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। तो उम्मीद से क्या नहीं होती, तो पर उम्मीद शख्स शर्मिंदा नहीं होता। सब कहिए, उम्मीद से भरा हुआ शख्स शर्मिंदा नहीं होता। तो क्या आप उम्मीद से भरे हुए हैं? आज थोड़ा बहुत जड़ियाँ गल्लां मायूस कर दियां ने, इन्हां नूं छड्ड दो, परे हुए इबादत करो, पता ही ना लगे कि भाई जी अज इन्हां को चंदा भी है कि नहीं। इंज करो इबादत जिवें अज सब कुछ इन्हां दे कोल ही है। क्यों इंज होए? और ये उस वक्त होगा, ये अपनी ताकत ना नहीं होना, ये भला किन्ने पैदा करना जो रूहुल कुद्स। ये उम्मीद कित्थों पैदा होनी है? रूहुल कुद्स से। और इंसान उम्मीद से भरा हुआ होता है, और वो उम्मीद से जो है ऐसे भरा हुआ होता है। अब मैं उम्मीद की बहुत सी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन पौलुस ने कलीसिया की आंखों को क्यों रोशन होने के लिए कहा है? क्यों रोशन हो जाएं? बोलो, मैं इन्ना लम्मा कलाम सुनाया, क्यों रोशन हो जाएं? उन्हां को की होवे है? तो एदा मतलब है कि जिदे कोल उम्मीद नहीं ओदियां अखां अजे तक बंद। जलाल दी उम्मीद। जेड़ा बंदा उम्मीद ना भरिया होया नहीं, हालात वाल नहीं वेखना, ये हालात दी उम्मीद नहीं है कि हालात ठीक होंगे तो फिर आप क्या होंगे? पुर उम्मीद होंगे। हालात इधर उधर होंदे रहंदे ने, लेकिन इंसान जो खुदावंद भी होता है वो क्या होता है? पुर उम्मीद होता है। आप पुर उम्मीद बंदे नूं भी वेख लियो, तो जिहड़ा बंदा मायूस है वो जो गल करेगा तो पता लग जाएगा कि नहीं, कित्थों गल शुरू करेगा। जिहड़ा बंदा वो चंगा भला भी होवे, उन्हें कहना नहीं भाई जी हाल कोई नहीं, हाल
कोनी जो तो ਉਹਦਾ ਹਾਲ कोनी जो। लेकिन एक बंदे के हालात इतने अच्छे ना भी हों, लेकिन अगर वो उम्मीद से भरा हुआ है, वो कितों गल शुरू करेगा? ओ भाजी कोई गल नहीं कह देना, ये हालात बदल जाएंगे एक दिन, खुदावंद ने काम कर देना है। मनु लगता है इंज कि खुदा ने अपना जलाल जाहिर कर देना है। तो इंसान जो है, मैंने इन दिनों में कभी कभी मुझे मौका मिले तो मैं इंडिया के उस खादिम को भी सुन लेता हूँ, अपना नरोला को। मैंने उसकी मैंने वीडियो को चंद देखी और मुझे जो एक चीज़ उसमें जो नज़र आई, उन्हें इस गल नूं सोचा कि इस तो पहलों कि कलीसिया वधे, पहलों किने वधना है? खादिम ने। किने वधना है? खादिम होवे डाक कद दा नहीं, रूहानी। ते कलीसिया आखे जी किड्डी, कलीसिया किड्डी, भाई जी मेरी कलीसिया बड़ी वड्डी हो जाए। मैं क्या खुद ते वड्डा हो, खुद वड्डा हो तो फिर कलीसिया क्या है? मैंने उसके सारे पैगाम का जो लबाल मैंने चेक किया, उसने यही कहा, मैंने 10 साल खुदावंद में अपने आप को बिल्कुल खुदा के सामने पेश किया है, और एक दिन वो उम्मीद से भर गया है, उसके दिल के अंदर ये बातें आ गई हैं और खुदा ने उसे पुर उम्मीद है बनाया है। और फिर जब वो बाहर निकला है तो जितना वो बड़ा हो गया था, खुदा ने उतनी बड़ी उसको कलीसिया दे दी। मैं भी एक दिन खुदा को कहन दिया, खुदावंदा लोगों नूं वधा। मैनू भी आवाज़ आई, तू खुद भी वध, खुद भी वध। जदों खादम वध जाता है तो कलीसिया ऑलरेडी वध जाती। कई एवं एक चीज़ क्या लेंदे रहे, वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। मैं कि इन्हें एक चीज़ क्या नहीं रोकया तेरे कमन, तू खुद पर उम्मीद हो जाएगा। खुदावन जो है वो अपनी कुदरत से लोगों को दूरों नज़दीक से क्या करेगा? ले आएगा, और खुदा अपना जलाल क्या करेगा? ज़ाहिर हो रहेगा। खुदावन है। मैं अभी सोच ही रहा था, मैंने कहा यार वो वावा खानदान आते ने, एक खानदान है वो बाबिया नूं मनदा, उन्हां चों कोई नहीं आता। ये मैं अभी सोच रहा था, कराची की बात है। और कल मैं जब परसों पादरी हिस्किल के पास था तो मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा कौन बात कर रहा है? कहने लगी मैं फ़लाँ बेटी बात कर रही हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं एल्बर्ट की वाइफ हूँ। मैं क्या वो एल्बर्ट जेड़ा बाबिया नूं पूछता है? आंधी हाँ वही। आंधी मैं अज अपनी माँ को गई सा, तो मैं अपनी माँ नूं कहा भी मेरा बंदा तो मेरा देवर भी नहीं जाता, तो मैं की करा? उन्हें कहा तू कली हो चर्च चली जा। मैं कहा लै काम में इत्थे पै गया ही, तो हुण अल्बर्ट भी आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अल्बर्ट भी हुण आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए कि जब आप खुदा की सुरी में पुर उम्मीद हैं, खुदावंद काम करेगा। तो पहली बात, आपने पुर उम्मीद रहना है। कितने चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो? मौजज़े से पहले क्या आएगी? वो आवाज़ काटे ही नहीं दुनिया, क्या आएगी? क्या आएगी? क्या आएगी? कितने लोग कहते हैं हालात बदल जाएंगे? आमीन। मुँह चाके कितने लोग हैं चमकते के हालात बदलेंगे? आमीन। कितने समझते हैं बाहर के दरवाजे खुलेंगे, खुदावंद अपना जलाल जाहिर करेगा? कितने चाहते हैं जॉब्स मिलेगी, लेकिन उससे पहले क्या होगा? उम्मीद। हम किससे भरे होंगे? तो पौलुस ने पहले उनकी कही कि उनके दिल की आंखें क्या हो जाएं? रोशन हो जाएं। और अगर किसी ईमानदार की आंखें रोशन हो गई हों तो वो बड़ी नंबर पर पुर उम्मीद होता है। दूसरी भी उसने दुआ की है उनके लिए। आइए इफ्सियों को ख़त ही निकालेंगे, पहला बाप। दूसरी इसलिए उनकी आंखें रोशन हो जाएं कि उनकी मिरास
کہ جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ تو دوسری بات جس کے لیے اس نے دعا کی ہے وہ ہے اس کی کیسی جو ہے کچھ جو ہے وہ میراث ہے یا جلال کے میراث۔ تو دوسری بات جس کے لیے دعا کی ہے وہ کیا ہے؟ میراث۔ میراث کیا ہوتی ہے؟ ہیں؟ کیا ہوتی ہے؟ ہیں؟ بولو جی، میراث کیا ہوتی ہے؟ وہ نکی کہتے ہیں بھئی میراث۔ اس کی سادہ اگزامپل آپ کو یہ ہوئی، جب قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تو ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ملک کنعان میراث میں دیا جائے گا، وہاں دودھ شہد، وہاں باغات، وہاں انگور انجیر ہر طرح کے درخت ہوں گے، وہ تمہاری۔ اور پھر آپ کو یشوع کے دور میں وہ میراث ان کو کیا کر دی گئی؟ تقسیم کر دی گئی۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا انہیں زمین پر کیا ملی؟ لیکن ایمانداروں، ہماری میراث زمین پر نہیں ہے، ہماری میراث کہاں ہے؟ زور سے بولیے۔ اے دے لیے بھی کی کھلیاں ہون، اکھاں تے پھر ہی پتہ لگدا، جو نہیں تے بندے دا دھیان زمین تے میرے کو ہے کی ہے، کہندے نے میری کوئی چیز ہی کوئی نہیں، منو آج تک خدا نے دیتا کی ہے۔ کئی اینسیلک چرچ کٹ آؤندے نے، بھائی جی میں کنے سنڈے آئے ہیں لبا، پتہ کہ کی لب دینے ہو، کی لب دینے؟ زمین تو کچھ نہ کچھ کی کر دینے، لب دینے۔ پھر جدن لب جاندہ ہے وہ دن خوش، جدن نہیں لبدا پھر مایوس ٹوٹی منجی تے جا کے پیا جانا ہے سانو کے لیے۔ لیکن ایمانداروں، جن کی آنکھیں روشن ہیں ان کی میراث آسمان پر ہے۔ آئیے یہ میں میراث آپ کو پڑھاؤں، یہ کہاں پر ہے اور کیسی یہ میراث ہے۔ آئیے خداوند کے کلام میں، پطرس کے خط میں۔ لمبا نہیں کروں گا، بہت سی باتیں میراث کے بارے میں ہیں، لیکن میں ایک دو بات کر کے میں تیسری چیز کی طرف بھی آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ پالوس کی دعا ہے کہ اس کے لیے جو ہم نے پطرس کا پہلا خط نکالا، اس کا پہلا باب 4 آیت، جب زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا اس نے، آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ ایک غیر فانی۔ غیر فانی کیا ہوتی ہے؟ بچوں مجھے میرے ساتھ رہنا ہے، غیر فانی کی ہوندی ہے؟ جیڑی کی نہ ہوئے، فنا نہ۔ میں سادہ لوگوں کے دل تک بھی آنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ پوچھتا ہوں، بہتوں کو تو پتہ ہے غیر فانی کیا ہوتی ہے؟ جیڑی ختم نہیں ہوندی، تباہ نہیں ہوندی۔ ایتھے کدی کچھ لب جے تے کدی مل گیا تے کدی تباہ، کدی وہ مل گئی تے کدی قبضے بھی ہو جاندے نے نا، ایتھے تے مسئلے اگے پیچھے ہو جاندے نے، موسم ایتھے کی کردے نے۔ لیکن وہ میراث ہماری غیر فانی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور وہ کس کے پاس ہے؟ ایماندار کے پاس ہے۔ اور کیا میراث ہے؟ پڑھیے خدا کے کلام میں۔ تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث حاصل کریں۔ تو یہ کون سی میراث ہے؟ بے داغ بھی ہے، غیر فانی بھی ہے، لازوال بھی ہے، اور وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ تو آپ کی میراث بھی جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ کہاں محفوظ ہے؟ کہاں محفوظ ہے؟ کہاں محفوظ ہے؟ جدو مسیح جان لگا سی تے کنیاں نو کیا سی کہ تیانو ایتھے زمین چ ادھر ادھروں میں حصہ ہون دواں گا۔ کیا کہا تھا؟ گلشن کی کیا سی؟ وعدہ یہ کیتا گیا کہ
मैं जाता हूं। असी इनू जोड़ दिता किदे ना, जनाजियां ना। की पादरियां ने जोड़ दिता जनाजियां ना। मैं जाता हूं। वो बेचारा जरा चला गया, वो तो चला गया। दूजियां नू भी ये दसते ने कि भाई जी मरोगे तो लभेगी, लेकिन मैं आज शाम कहना चाहता हूं ये मरने से पहले ही हमारी है। कहां पर है? ऊपर हाथ करके कहिए, कहां है? ले इत्थे किसी को किते मैं ना किते जमीन का टुकड़ा खले ले उन्हें मिठाई ना टेबल पर देना, ते जे किते आसमान तो साड़ी मेरास बहुत बड़ी। लेकिन चूंकि हमारी आंखें बंद है, हमें पता नहीं है, हम मैं निम्मू चाणे हैं बात करके कुछ भी नहीं समझ नहीं। अच्छा वो घर आ भी आ, उन्हों लाल संदूक मिल गया ही, उन्होंने आ मिल गया ही, वह मोबाइल एडा वड्डा ही, मेरा छोटा ही, मेरे को 33 आ, वो को 34 आ, फलाने। बस हम इसी के चक्कर में। लेकिन मैं कहता हूँ काश हमारे कलीसिया दिल की आंखें रोशन हो जाएं और आसमान पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी मेरास हमारी क्या है, महफूज है। आमीन। आपको याद होगा, कभी आपने पढ़ा होगा कि एक बादशाह के बारे में पुरानी सुनाते हैं। मास्टर जी जो पुराने लोग हैं इनको याद होगा। एक बंदे ने, उसको पैसा मिला, उसने कहा भी तेरा मैं मकान बनाऊंगा। उन्हें कहा ठीक है मेरा माल बना दे। उन्हें पैसा पूसा लिया तो सारा खुदा दे कम्मां ते की कर दिता। वो बादशाह ने कहा भी भाई जी, ते बादशाह नूं पता लगा मेरा ते माल कोई भी नहीं बनया। उन्हें की कीता, उन्होंने चुक के ते किथे सुटिया, कैद सुटिया। एक दिन उन्होंने ख्वाब आई ते उन्हें वेख्या आसमान ते की एक बड़ा वड्डा मुहाले कढ़िया। उन्हें बाहर आंदा है, मेरी तो अखां ही बंद सन। मेरे बहनों भाइयों, काश मैं आपको बता सकूं कि हमारे कितने बड़े महल हैं और वो आसमान पर हैं। जिनका कलाम के ऊपर भरोसा है, जिनको ये पता है कलाम की बातें सच्ची हैं, वो इस बड़ी मेरास को पाने के लिए उनकी आंखें क्या हो जाएं, रोशन हो जाएं। कहाँ पर आपकी मेरास है? आप खुश हैं? कितने खुश हैं? तालियां आपकी बताएं कितने खुश। कहां पर आपकी मेरास? आमीन आमीन आमीन। इंज दे तुही 4-5 किते घर नारे मार दिते ना ते मयूसियां जड़ियां काने खांचे आच भी ने भी पज पुज जानियां। इन्हां नूं पता लगना है ओ भाई इन्हां दियां ते अखां, इन्हां ते अखां, इन्हां दी अखां खुल गईयां जो, क्योंकि इनको पता है ईमानदार की बहुत वो पच चर्च आएगा, वो चर्च दे कमां च हिस्सा लेगा, वो खुदा दे काम च हिस्सा लेगा, क्योंकि उसको पता चल जाता है। पर कई लोग इंज दे भी है जो, मैं ऐसे मुझे याद आ रहा है कई लोग इंज दे भी है जो। एक बाइबल च अकन्स है निकलिया मेरा आस लैन ते लभ की गई ओनू सोने दी इट आओ प्याई। अज कलीसिया च कई अकंजो, क्योंकि उन्हों दी अखां की ने बंद, ते अकन ने अपनी मेरास खत्म कर दी थी। पत्थरां नाल ढेर बन गया, कोई मेरास नहीं जो इनू मुल्के कनान च लभी। क्यों नहीं लभी? इन्हें दुनिया नू पसंद किया, दुनिया दी चीज़ां नू पसंद किया। दुनिया दे होर भी रूल कुछ ना परे सी ते अगे बहिंदे सी। किथे बहिंदे सी? अगे। कौन? हनानिया ते सफीरा। तालियां मारन, भंगड़े पाउन, खुशियां बेटे, ध्यान जमीनी चीज़ां ते कोई नहीं उन्हें पता उत्ते की होण दिया, कुछ नहीं। उन्होंने जमीनी चीज़ों ने पसंद किया, चुप करके उन्होंने अद्धा हिस्सा रखिया तो जान के रख रुक के उन्होंने कहा भी साड़ियाँ तो लखड़ियाँ वेखड़ियाँ लोगों ने तालियां ही, पर वहाँ रूहुल कुद्स मौजूद था। वो सिर्फ तालियां और नारे नहीं देखता, वो दिल पर क्या करता है, निगाह करता है। उसने जैसे अंदर निगाह की, उन्हें कहो ये चोर नहीं हो अंदरों की नहीं, इन्हों का ध्यान किथे? बोलो तो सही, कहाँ ध्यान है इनका? है
ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀ ਲੱਭਾ ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ तक चला गया, बस इन्ना चीज़ों दे, क्योंकि उनकी आंखें क्या हैं। आज पौलुस की दुआ है एफसीए चर्च के लिए भी, हम सब के लिए भी, कि हमारे दिल की आंखें क्या हो जाएं। जल्दी से तीसरी चीज़ भी हम देखेंगे खुदा के कलाम में, और वो तीसरी बात के लिए भी दुआ कर रहा है खुदा के बंदा जो है पौलुस, दिल की आंखें क्यों रोशन हो जाएं, क्यों आंखें खुल जाएं, क्यों ये आंखें खुली होनी चाहिए, क्यों आंखें जो हैं वो रोशन हो, इसलिए कि एक तीसरी चीज़ यहाँ पर है। पहली चीज़ है तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाए जाने में कैसी कुछ और उसकी मिरास की जलाल की दौलत मुकद्दसों में, और 19वीं आयत पे लिखा है और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। ते तीसरी गल जिहदे लई पौलुस आंदा है अखां खुल जाण, वो है बड़ी कुदरत। कौन सी कुदरत? जरा जोर ना बोलो, केड़ी कुदरत? हमें खुदा की बड़ी कुदरत के बारे में जानने की जरूरत है। छोटी छोटी नहीं कि वो छोटे छोटे काम कर सके, उसकी बड़ी कुदरत। मैं आज जब तैयारी कर रहा था तो मुझे ये लफ्ज़ अमाल की किताब के 8वें बाब में भी मिला, लेकिन लंबा हो जाएगा, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। वहां लिखा है एक शमाउन जादूगर था। कौन था? लिखा है उन्हें भी अपने इलाके दे विच एक गल फैलाई सी, मैं कोई बड़ी कुदरत। क्या वहां लफ्ज़ लिखा है? मैं बड़ी, लेकिन कोई जादूगर, कोई तवीज़ करने वाला, कोई शैतानी कुव्वत, कोई इब्लीस का गंदा असर, वो बड़ी कुदरत नहीं है। मेरा यहोवा खुदा यीशु नासरी बड़ी कुदरत है। उसकी बड़ी कुदरत को जाने। वो मुकद्दसों में क्या बड़ी कुदरत को, कभी कभी हम छोटी छोटी खुदा की कुदरत से क्या होते हैं, वाकिफ होते हैं, लेकिन खुदा की बड़ी कुदरत जो है वो बाइबल में मौजूद है। इसकी कई बातें की जा सकती हैं, लेकिन काफ़ी लंबा पैगाम हो गया है। मैं अब बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जाना चाहता हूँ। मुझे याद पड़ता है मैं कोयटा में एक कन्वेंशन में गया हुआ था, और आप उस खादिम को सब जानते हैं, वो बहुत नामवर खादिम है कोयटा में। शायद वो वहाँ का बाबा है, सबसे जो है बड़ा चर्च उनके वहाँ बने हैं, बड़े खूबसूरत चर्च। मैं कुर्सी ते बैठा जिवें राशद बैठा ते नाल वो मेरे बैठा सी, ते मैं दुआ करन दिया सी, ते मेरे कान दे विच आण के कहंदा भाई जी जरा कलाम ना इत्थे उच्ची सुन दे जो। शायद उन्हें सोचिया होवे, ओदा कद लंबा सी, उन्हें सोचिया होवे कि भाई एदा कद छोटा है, एदी आवाज़ भी छोटी होएगी। हुण मैं उन्होंने की कहां कि भी मैं उच्ची सुनावांगा ते क्या, पर मैं खुदावंद नूं क्या खुदावंद अज इत्थे कोई जलाल जाहिर करना, इनू पता लग जाए कि उच्ची ते छोटी की हुंदी। मैं ऐसे ही कलाम सुना रहा था। उनके बड़े बच्चे गिटार गुटूर बजाते हैं, आप सब जानते हैं, और बड़ा नाम है उनका, गिटारों मिटारों में बड़े लगे हुए हैं। मैनू नहीं सी पता भी ओदा ही मुंडा अगली लैन च खलोता है। कलाम सुनाउंदियां अजे मैं 10 मिनट ही, पता नहीं उच्ची सी के नीवा कलाम सी, ये तो मनु नहीं पता, पर मेरा हाथ उसके ऊपर जो है चला गया। ओ मैं क्या है, तू जिस लड़की के पीछे लगा हुआ है और तूने लाखों रुपया उसके लिए जाया कर दिया, वो ते मुंडा डाडा मारे ते प्यो जड़ा मेरे कान च कहंदा सी ते गिटारां वाले सारे डाडा, तो पूरा चर्च ही किदे ते शुरू हो गया, डाडा तो शुरू हो गया। तो उन्हों का वो मैनू बाद च पता लगा कि कोई 2
2-3 ਸਾਲ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ फंस गया रूल को उसके अगे। क्यों? लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये इसलिए हुआ कि खुदा की बड़ी कुदरत, उसकी बड़ी कुदरत। बाद विच मनु पता की कहे, कहे भाई जी लोगों नू मसा करना। मैं क्या जी ठीक है कर देने। मैं तेल तो मेरे कोल खलोता आंदा भाई जी तुहाडे को मसा बड़ा मैं डिग पैना, भाई जी किसी होर नूं खिलारो। मैं क्या उदों मैनूं कहंदा सी जरा उच्ची सुनाई, उच्ची सुनाई, उच्ची सुनाई, उच्ची सुनाई। जब खुदा की कुदरत जो है वो काम करती है, उच्चियां शुचियां खत्म हो जांदियां ने। फिर खुदा की कुदरत की हुंदी है सर के उसका नू पुत्र है जो आप उनको जानते हैं ज़्यादातर क्योंकि वो टीवी पर अक्सर रहते हैं। वो अपनी छाप जो उसकी थी ना रिंग, अपना वेडिंग रिंग उतार कर मनु मेरे दोवें जने मेरे गल जाए कहे जी आ साडे खुदा ने साडे दिल च पाया ये ध्यान दो। मैं कहो नहीं नहीं ये भाई मैं तेरी शादी दी नहीं लैनी, पर उन्होंने बदा बदी मुझे दे दी वो। लेकिन मैं जो आपकी बात आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ वो ये लाना चाहता हूँ, खुदा की बड़ी कुदरत। क्या आप उसको जानना चाहते हैं? जो लोग आपको मामूली समझते हैं, जो लोग आप समझते हैं ये खादिम कैसे है, कई लोग आपको ऐसे समझते हैं। जब खुदा की कुदरत आपकी ज़िंदगी में काम करती है, खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। हम 9 नंबर में थे, एक बड़ी इबादत का खुदा ने हमें मेरे दिल में डाला कि हम इस साल बड़ी 12 इबादतें करें। हमारे पास तो बाहर से सोर्स नहीं थे, लेकिन हमारे पास हमारे बच्चे बड़े बाहर गए हैं, और कोई दुबई में है, कोई कुवैत में है, बहुत सी बेटियां गई हैं, बेटियां हैं। हमारे चर्च पर एक बहुत बड़ी बरकत ये है कि जेड़ा साढ़े चर्चों गया कभी गया नहीं, वो शिफ्ट भी हो जाए दै यकी ओदी उत्थे ही आउंदी है। ये पता नहीं खुदा की क्या ब्लैसिंग है या क्या खुदावंद की एक बड़ी है, और हमें लाखों रुपया वो भेजते हैं। मैंने कहा यार असी ना इन्ने पैसे नू की करना है, चलो खुदा दा काम करिए। खुदा के काम के लिए हमने जो है वो पैसा जो है वो अपना लगा दिया उस पर, और हमने बड़ी मेहनत। तो हम एक मीटिंग कर रहे थे, खुदावंद ने मुझे, मैं एक दिन लेटा हुआ था तो खुदा ने मुझे कहा उठ 9 नंबर च इबादत कर। मैं कहा चलो। पूरी दुनिया इतनी खुदा का जलाल ऐसा खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि आज कह कि जिन्नू किसे नू गिलड ने गले का वो है आज 1 मिनट में जाने वाला है। आप यकीन जाने वहाँ कोई कम से कम कोई 25 लोग होंगे जिनको गले का प्रॉब्लम था, उनके टेस्ट हुए थे, लेकिन खुदावंद ने 1 मिनट में उनको शिफा दे दी। इसको कहते हैं खुदा की बड़ी कुदरत। पहले मुझे नहीं पता होता था, अब मैं उन्हां दे टेस्टां दी रिपोर्ट भी अपनी फाइल च रखने। वो लियाए, मैं कहा लियाओ यार जेडे टेस्ट साडे पहले होए सी। एक बाजी कहती मैनू क्या सी तू सारी उम्र एक गोलियां खाना है। मैं क्या साडे को बड़ी कुदरत थी, लेकिन इसके लिए आंखें क्या होनी चाहिए हैं? नहीं तो बंदा यही सोचता रहिंदा है इधर नू किते ने कुंडी ला यार, इधर नू ला, इंज दी कोई गल मैसेज सुट, क्योंकि उसका ध्यान किदे ते नहीं हुंदा। अखां बंद, फिर झूठ फरेब ना मैसेज की करते हैं वो। चलो तुसी नहीं सुटते होने, चल जेड़े सुटते ने उन्हां दे ही कहो सुटते ने कि नहीं है। ये को कौन है जिनका ये ध्यान नहीं है कि उसकी बहुत बड़ी कुदरत का वो क्या है मालिक है, वो बहुत बड़ी कुदरत का क्या है वो मालिक है। और लिखा है तुम्हारी दिल की आंखें रोशन हो जाएं कि उसके बाद बहुत बड़ी। आज मैं ईमान रखता हूँ वो कुदरत यहाँ पर भी मौजूद है। आमीन। क्या आप उस कुदरत का नज़ारा करना चाहते हैं? कितने करना चाहते हैं? तो मैं ईमान रखता हूँ वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएं।
अगर आप अपनी इस कुदरत का नज़ारा करना चाहते हैं। ये पौलुस की दुआ है। आगे 4-5 बातें रह गई हैं, किसी वक्त फिर सहा तो हम आगे आयत पर देखेंगे, लेकिन लंबा हो गया है। 3-4 बातें आगे लिखी हुई हैं, लेकिन उसको फिर हम चेक करेंगे। लेकिन आइए आप देखिए खुदा की बड़ी कुदरत। कितने खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं? हाथ हिलाइए, हाथ हिलाइए जोर से, जोर से बड़ी कुदरत के लिए हाथ हिलाइए और शॉट कीजिए, चलाना शुरू कीजिए। कहिए खुदा तेरी कुदरत बहुत बड़ी है। बड़ी है कि नहीं है? मैं छोड़ गया हूँ अमाल दी किताब च जरा कहते ने बड़ी कुदरत। खुदा ने क्या थे बंदा छोटा ही भेजना है, क्योंकि कुदरत ना जेड़े चौल चौल वंडते सी ना उन्होंने ही भेज छड़िया। फिलिप्पस वो गया, उन्हें पूरे शहर को तब्दील कर दिता। लिखा है क्या मर्द क्या औरत हर एक ने की लिया, ते एंड च ये भी डिगदा फिरे ते आंदा है मैनू भी दे दो, मैनू भी, क्योंकि ओदे सामने बड़ी कुदरत कोई भी नहीं है। कुदरत वड्डी ओदी हुई है। आमीन आमीन। मेरे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि कुदरत उसकी सबसे बड़ी है। आइए आप ईमान के साथ ये कहिए ये कुदरत मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू करें। आमीन। नोबल आएगा, थोड़ी देर आप वर्शिप करेंगे। आपने आंखें बंद करके वर्शिप करनी है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा की कुदरत आप में काम करना शुरू करेगी। आमीन आमीन।